تو دوستوں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے زکوٰۃ صغیر اور اس کی 4 قسمیں اعتبار عمل کے، کیونکہ عملیات کے باب میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور عملیات میں یعنی عامل کا لفظ جب ہی جڑتا ہے نام کے ساتھ جب کسی عمل کی زکوٰۃ وہ ادا کر لیتا ہے باقاعدہ۔ زکوٰۃ اس کے اندر بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے عملیات کے اندر۔ ہم نے اپنی کتاب اصول عملیات کے اندر زکوٰۃ کی تقریباً 60 قسمیں ذکر کی ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو ماہر بننا چاہے اس کے لیے تو تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جس کو صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، دھوکہ دینا ہے، خود بھی دھوکے میں پڑے رہنا ہے اور جان بوجھ کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا ہے، تو وہ اس کے سیکھنے کی زحمت نہیں برداشت کرتا۔ جو فن سے دلچسپی رکھنے والے اور روحانیت کو حقیقت میں حاصل کرنے والے لوگ ہیں، وہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہی انہی کے کام کی یہ ویڈیو ہوتی ہے۔ نہیں تو جو عام لوگ ہیں ان کو تو یہ چاہیے کہ 4 لکیروں کے بیچ میں کچھ بنا ہوا ہو، کوئی نقش سا ہو جو دیکھنے میں بڑا عجیب سا، مشکل سا اور عجیب و غریب شکل لگے کہ ہاں یہ تو بہت کام کا نقش ہوگا۔ وہ ان کو بس اس کی لکیروں سے مطلب ہوتا ہے اور اس کو چوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ یعنی گویا ایک طریقے سے کہہ لیجیے وہ ایک ڈیزائن کی طرف جو ہے وہ زیادہ رغبت رکھتے ہیں بجائے اس کے اندر کی روحانیت کے۔ یہ کچے پن کی علامت ہوتی ہے، خود بھی دھوکے میں ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے جو روحانیت ہے اس کا دروازہ اور اس کا باب کھلتا ہے۔ ہم آپ کے لیے ابتدا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کیونکہ عملیات کا دار و مدار پورا کا پورا 2 چیزوں پر ہے، یعنی اصولی اعتبار سے یا تو اعداد پر ہے یا حروف پر ہے۔ اعداد سے مراد یہی ہے کہ اس کی تعداد ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، یا پھر اس حروف اور اسم یا اس آیت یا اس عمل کی جو قمری اعتبار سے عدد نکالے جاتے ہیں اس کی وہ گنتی، جس کو ہم تعویذ میں بھی لکھتے ہیں۔ تو ایک باب تو عدد کا ہے، دوسرا باب حروف کا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ حروف ہی کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جو کبھی کبھی تعویذات کے اندر جو لکھے جاتے ہیں وہ حروف ہی ہوتے ہیں۔ تو آخر کار اگر ہم دیکھیں تو پورا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حروف اور اعداد پر اس کا اکثر حصہ ٹکا ہوا ہے۔ اکثر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ کبھی کبھی طلسمات استعمال کیے جاتے ہیں جو نہ اعداد میں سے ہوتے ہیں نہ حروف میں سے ہوتے ہیں، لیکن 80 سے 90% حصہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اعداد اور حروف پر ہے۔ تو زکوٰۃ کی بھی 2 ہی قسمیں ہوں گی، اعداد اور حروف۔ جی ہاں، کے اعتبار سے یعنی اعداد کے اعتبار سے بھی شکل ہوگی اور حروف کے اعتبار سے، ان کی اقسام ہم بیان کریں گے۔ پھر ایک ترتیب ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اعتبار سے، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے یا تو وہ عامل بننے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے یا پھر اپنے کسی مقصد کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو 2 قسمیں یہ ہوئی۔ 2 قسمیں میں نے ابھی عرض کی کہ حروف اور اعداد کے اعتبار سے، اور 2 قسمیں ادا کرنے والوں کے اعتبار سے، یعنی وہ جو ادا کر رہا ہے زکوٰۃ وہ عامل بننے کے لیے کر رہا ہے یا پھر اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے جو درجات ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے اس کے اندر درجات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عملیات کے اندر بھی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک درجات ہیں۔ ہم کیسے پتہ لگائیں کون عامل چھوٹے درجے کا ہے، کون عامل بڑے درجے کا ہے؟ دیکھیے، ایک تو عام سا قاعدہ یہ ہے، جس کی روحانیت جتنی مضبوط ہوگی اور جس کے پاس جتنی زیادہ مضبوط اجازتیں اور مضبوط ریاضتیں، مضبوط علم اور مضبوط تقوی ہوگا، وہ مضبوط عامل ہوگا۔ جی ہاں، اور ان میں سے اگر کمزوری آنی شروع ہوگی تو اس کے وہ پلر جس پر عملیات کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے تو سمجھیے وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ بھی اس کا ایک اہم پلر ہے۔ اگر یہ کمزور ہوگا تو عامل بھی کمزور ہوگا۔ چھوٹی زکوٰۃ ادا کی ہے تو عامل بھی چھوٹے درجے کا شمار ہوتا ہے، بڑی زکوٰۃ ادا کی ہے تو عامل بھی بڑے درجے کا شمار ہوتا ہے۔ اسی سے عملیات کے اندر عاملین کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ بعض عمل کی زکوٰۃ ایسی ہوتی ہے جو 60 سال میں جا کر ادا ہوتی ہے، 40 سال میں جا کر ادا ہوتی ہے، 30 سال میں جا کر ادا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ پرانی زکوٰۃ شروع کرتے ہیں، 30 سال میں جا کر پورے کرتے ہیں، تو وہ عامل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی یہاں ہمیں مختصراً ہی آپ سے عرض کرنا ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی۔ تو یہاں ہم زکوٰۃ کی صغیر کی جو ہیں وہ 4 قسمیں ذکر کریں گے۔ عملیات کی کتابوں کے اندر ہر سلسلے نے زکوٰۃ کی اپنی ایک ترتیب ذکر کی ہے اور بہت ہی الجھی ہوئی اور پیچیدہ اقسام ذکر کی ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے اصولی طور پر زکوٰۃ کو بیان کریں گے تاکہ آپ کسی بھی چیز کی اور کسی بھی اسم کی، کسی بھی آیت کی
और किसी भी अल्लाह के नाम की या किसी भी इबारत की आप ज़कात आसानी निकाल सकते हैं अगर आपको उसूल पता लग जाए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, हमारी किताब जो उसूल अमलियात पर है, उसके अंदर हमने ज़कात के तकरीबन 60 उसूल दिए हैं और 60 अलग-अलग किस्म की वो ज़कातें हैं। उस उसूल को आप ज़हन में बिठाएँगे तो किसी की भी आप ज़कात निकाल कर 1 मिनट में बता सकते हैं। आम तौर पर क्या होता है, आमिलीन अच्छे-अच्छे आमिलीन ये देखे गए हैं, वो ज़कात में जो है वो नक़ल के मोहताज होते हैं कि कहीं कोई अमल लिखा हुआ है, उसकी ज़कात लिखी हुई है तो उन्हें पता होती है, और अगर कहीं कोई अमल लिखा हुआ है और ज़कात वहाँ नहीं लिखी तो वो बेचारे इधर-उधर फिरते हैं और मालूम करते हैं कि इसकी ज़कात कैसे निकाली जाए। लेकिन इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि किसी भी अमल की अगर वहाँ ज़कात नहीं लिखी है किताब के अंदर, तो आप उसके ज़कात की दर्जा बंदी भी कर सकते हैं और ज़कात निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तसलसल के साथ और पूरी अक़साम पर आएँगी। तो अब हम शुरू करते हैं। ज़कात सग़ीर की अक़साम 4, 4 किस्में होती हैं। आम तौर से किताबों में लिखी हुई होती है। सबसे पहले नंबर पर ये सग़ीर ज़िक्र करते हैं, दूसरे नंबर पर असग़र ज़िक्र करते हैं, तीसरे पर सग़ाइर ज़िक्र करते हैं और चौथे पर असग़रुस सग़ाइर। ये 4 दर्जे ज़कात के ज़िक्र करते हैं। हालाँकि सग़ाइर जमा होती है सग़ीर की, लेकिन ये इस तरतीब से ही दर्जाबंदी की गई है। अच्छा, ये छोटी ज़कातों में बड़ी मानी जाती है। यानी छोटी ज़कातों में सबसे ज़्यादा पावर रखने वाली सग़ीर होती है, फिर उससे कम दर्जे की असग़र होती है, फिर उससे कम दर्जे की सग़ाइर होती है, फिर असग़रुस सग़ाइर सबसे कम दर्जे की होती है। इस वीडियो के अंदर हम जो आपको ज़कात बता रहे हैं और ज़कात का उसूल बता रहे हैं, ये ज़कात आमिल बनने के लिए नहीं होती, बल्कि आपके पास कोई मरीज़ आया है और आते हैं आमिलीन के पास, या आप आमिल नहीं हैं, खुद से किसी आप आमिल तो बनना नहीं चाहते, लेकिन अपने किसी मकसद के लिए किसी अमल की ज़कात देकर उसकी पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना आमिल बने। तो ये छोटी ज़कात बहुत होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा परहेज़ जलाली, जमाली वग़ैरह ये आपको नहीं करने पड़ते और आसानी से आप इसके जो है अमल कर सकते हैं और इसकी ज़कात अदा करके उससे अपनी हाजत पूरी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी आमिल हैं तो किसी को बता भी सकते हैं, किसी का काम तावीज़ों से नहीं हो रहा है तो उसको वो अमल बता सकते हैं जो हम यहाँ ज़िक्र करने जा रहे हैं। अमलियात की वो इब्तिदाई और हल्की तरीन किस्म है जिसमें किसी मखसूस अमल यानी आयत, विर्द या इस्म की महदूद तादाद के साथ चिल्ला कशी की जाती है। बहुत महदूद तादाद होती है, बहुत कम तादाद होती है। इसी को यानी सगीर, और हमने यहाँ एक बात और लिखी है, इस्तिलाही जो इसका नाम है वो दिया है ज़कात सगीर अमलिया। जी हाँ, क्योंकि इसका ताल्लुक अमल से है, अभी पता लग जाएगा इसका इस नाम रखने की वजह। तो हमने जैसे कि अभी यहाँ पढ़ के बताया कि ये सबसे छोटी और महदूद होती है, ताकि इस मखसूस अमल पर रूहानी तसर्रुफ़ हासिल हो जाए। यानी मैंने अभी जैसे कि कहा कि अमल की क़ुव्वत को वो इस्तेमाल कर सके एक आम आदमी भी, आमिल ना होते हुए भी, तो वो ज़कात से होता है। इस ज़कात का दायरा आम अफ़राद, कारोबारी तबके या इन अफ़राद के लिए मौज़ू है जो मुकम्मल मुजाहिदे या सख्त शराइत वाले आमाल के मुतहम्मिल नहीं होते। यानी बहुत सख्त शराइत वाले आमाल जो नहीं कर पाते और कारोबारी लोग होते हैं, उनके लिए भी ये ज़कात देना आसान होता है और वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ख़तरा किसी किस्म का नहीं होता। अब हम आते हैं पहली किस्म पर ज़कात की, ज़कात सग़ीर। ज़कात सग़ीर क्या होती है, किसे कहते हैं, इस उसूल को आप ज़हन में बिठा लेना, तमाम में यही चलेगा। ज़कात सग़ीर से मुराद वो चिल्ला है जिसमें किसी मख़सूस अमल को इसके कुल आदाद के मुताबिक रोज़ाना 40 दिन तक के पढ़ा जाए। अब देखिए, मिसाल देकर मैं आगे समझा रहा हूँ। अगर किसी अमल का अदद, यानी अमल के जो आदाद हैं वो 786 हैं। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का की ज़कात अदा करनी है किसी को, और आमिल तो वो बनना नहीं है और बस ये चाहता है इस बिस्मिल्लाह के ज़रिए अपनी किसी कारोबारी खैर व बरकत के लिए या फिर अपने किसी मुसीबत को दूर करने के लिए, अपने फ़क्र को दूर करने के लिए, तो वो 786 अदद बनता है बिस्मिल्लाह का अबजद कमरी के एतबार से। तो 786 मर्तबा वो 40 दिन तक पढ़ेगा, 40 दिन तक रोज़ाना पढ़े, तो ये ज़कात सग़ीर कहलाती है। इसका पढ़ना 786 मर्तबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कोई वक़्त मुतय्यन कर ले, इसमें ये ज़रूर होता है, वक़्त तो मुतय्यन करना होता है, लेकिन कोई अगर ना भी कर पाए, तो कोई हरज नहीं, इसके अंदर ये हो है। करे तो बेहतर है, ना करे तो कोई मसला नहीं। अब वक़्त और जगह, लेकिन ये है कि रोज़ाना उसको पढ़ना है। वक़्त और जगह अगर मुतय्यन करेगा तो मज़ीद फ़ायदा होगा, लेकिन ना करे, क्योंकि सग़ीर ज़कात है, इसके अंदर कोई शराइत, कोई परहेज़ नहीं होता, ना जलाली ना जमाली। हाँ, बस ये है कि गुनाहों से बचे, नमाज़ का एहतिमाम करे जो आम
मोमिन को करना चाहिए। तो 786 किसी भी अमल का, अगर किसी को लफ्ज़ अल्लाह, जैसे अल्लाह के नाम की ज़कात अदा करनी है, तो अल्लाह के अमल, जो हमें अमल पढ़ना है उसके अदद लेंगे। इसीलिए हमने इसका नाम यहाँ रखा है ज़कात सग़ीर अमलिया, क्योंकि अमल के जो अदद हैं उससे हम ज़कात छोटी निकाल रहे हैं, तो इसका नाम ज़कात सग़ीर अमलिया रखा है। आगे जब और किस्में आएँगी तो उनके नाम यहाँ आखिर का ये बदलता रहेगा। तो 786 जैसे हमें बिस्मिल्लाह का देना है, तो 786 मर्तबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ेंगे, तो ये ज़कात सग़ीर कहलाएगी। और अगर किसी को अल्लाह के नाम का जो है वो की ज़कात अदा करनी है, 66 मर्तबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ेगा, तो ये ज़कात सग़ीर अमलिया कहलाएगी। ये एक पहली किस्म हुई है। अब इससे भी हल्की कोई निकालना चाहता है, 786 मर्तबा वो नहीं पढ़ सकता है, और तो उसके लिए असगर ज़कात होती है। ज़कात असगर का क्या होता है कि ज़कात सग़ीर यानी अमल के कुल आदाद, जो पिछली ज़कात गुज़री है पहले नंबर पर, उसकी टोटल अमल के अदद देखेंगे कितने थे, 786 थे जैसे कि। तो इसमें क्या करना होता है असगर में, कि उसका आधा कर लेते हैं, आदाद का निस्फ़। ज़कात असगर कहलाता है। ये भी 40 दिन तक ही होती है। अगर अमल का कुल अदद 786 है, तो इसका आधा होगा 393। जी हाँ, 393। अब ये इससे छोटी, सग़ीर से छोटी असगर हो गई। इसमें तफ़ज़ील का सीगा है, जो नहव सर्फ़ पढ़े हुए हैं वो जानते हैं। तो बहरहाल ये कोई तफ़ज़ील वग़ैरह बताने का मकसद तो नहीं है, तो एक तरतीब है इसकी। तो 393 अदद यानी 393 मर्तबा रोज़ पढ़े तो ये ज़कात असगर कहलाती है, पहले वाले से ज़रा कम ताकत रखती है। और मुद्दत इसकी भी 40 ही दिन होती है, परहेज़ कोई नहीं होता। कोई इससे भी थोड़ी छोटी ज़कात अदा करना चाह रहा है और मशगूल है और हिम्मत नहीं, जैसे मरीज़ आते हैं आमिलीन के पास, तो वो देखते हैं उनकी हिम्मतों के मुताबिक ये ज़कातें वो किसी अमल की उनको निकाल कर दे सकते हैं और बता सकते हैं। इसके लिए उन्हें करना कुछ नहीं है आमिलीन को, बस बहुत आसान तरीका ये है, किसी भी अमल है, कोई आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, अल्लाह का कोई नाम है, उसके अदद निकालने हैं और उसके अदद के मुताबिक उन्हें बताएँ। अगर वो उसको ना पढ़ सके तो उसको आधा कर दें, तो ज़कात असगर कहलाएगी। और ज़कात असगर यानी 393 93 इसका भी जब आप आधा कर देंगे तो ज़कात सगाइर कहलाएगी। जी हाँ, अगर ज़कात असगर के आदाद को निस्फ़ कर देंगे तो ज़कात सगाइर हो जाएगी। मसलन ज़कात असगर के 393 अदद हैं, तो इसका निस्फ़ 197 हुआ। 197 इसलिए लिया, 1 करेंगे तो 96 कम हो जाएगा, क्योंकि साढ़े 96 बैठते हैं, तो 1 बढ़ते हुए लेना होता है। जब 393 का आधा अदद ना आ सके, क्योंकि 92 से तो आधा हो सकता था, 93 में तो पॉइंट आएगा, वो आधा वजीफ़ा किस तरह पढ़े, तो 1 बढ़ाकर ले लेते हैं। इसका भी किताबों में इस्तिलाही एक नाम है। जी हाँ। तो ज़्यादा नाम और ज़्यादा इस्तिलाहात ना बताते हुए आसानी के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपके समझ में आए। अगर आपको पूरे मुकम्मल उसूल की महारत चाहिए, तो आपको वो किताब जो हमारी तसनीफ़ है, उसूल अमलियात, वो पढ़नी पड़ेगी। तो बहरहाल 197 इस एक 393 का आधा हुआ था, यानी साढ़े 96 हुआ था, लेकिन हमने 197 इसको किया है, एक आधे का इज़ाफ़ा करते हुए। तो 197 पढ़ेंगे, तो ज़कात सगाइर कहलाएगी। कोई 197 भी नहीं पढ़ सकता, बहुत ही बिल्कुल माज़ूर और लाचार है, तो उसको फिर असगरुस सगाइर ज़कात दी जाती है। ये इसका भी आधा होता है। बस सादा-सा उसूल है, देखिए बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, और एक जो अमलियात में नहीं भी है वो भी समझ जाएगा। सगीर का आधा करोगे तो असगर बनेगा, असगर का आधा करोगे सगाइर, सगाइर का आधा करोगे असगरुस सगाइर। ये बहुत आसान बिल्कुल अंदाज में है। तो 197 का आधा करा तो 99 हुआ, वही उसूल अपनाते हुए जो भी ज़िक्र किया है। तो असगरुस सगाइर ये ज़कात कहलाई। इसको 99 मर्तबा रोज़ाना बिस्मिल्लाह पढ़ने की तरगीब दी जा सकती है, कि ये 40 दिन तक के 99 मर्तबा रोज़ाना बिस्मिल्लाह पढ़े, तो ये ज़कात अमलिया हो गई बिस्मिल्लाह की। कोई और नाम देना है तो कोई और नाम के अदद आएँगे यहाँ, फिर वो अदद बदल जाएँगे, बस अदद निकालने का खेल है। तो अदद निकालना भी आप हमारी वीडियो से सीख सकते हैं, दूसरी हमारी वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद है। यहाँ हमने इसका एक इजमाली तौर पर खाका दिया है। ज़कात सग़ीर है, फिर ज़कात असगर है, ज़कात सग़ाइर है, ज़कात असगरुस सग़ाइर है, फिर इसकी ये तादाद दी है कितनी किसकी है, 786 है, 393 है, 197 है, 99 है, दिन सब में 40 है। इसकी इजाज़त किसी ख़ास बिल्कुल
ایسے عامل سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ اگر کسی مریض کو یہ کہہ رہے ہیں تو پیچھے سے آپ کو اس کی اجازت ہونی ضروری ہے، بس اصول معلوم ہونا چاہیے، آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ یہ اتنی آسان اور وہ ہوتی ہے، کیونکہ مستقل اس میں عامل تو بنتا نہیں بنتا، تو اس میں پیچھے سے اجازتوں کا تسلسل بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس میں پرہیز بہت ہلکا ہے، یعنی طہارت، گناہوں سے بچنا وغیرہ جو میں نے ذکر کیا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی سے جڑی ہوئی ویڈیو انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آئیں گی، اور تقریباً ہم زکوٰۃ کی 40-50 قسمیں ذکر کریں گے، کیونکہ پی ایچ ڈی جو تخصص فی العملیات کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں بڑی مہارت چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نہایت ہی بہت اہم ضروری چیز ہے۔ اور آپ کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، اتنی اس کو آسان کرنے میں محنت ہوتی ہے، تلاش کرنے میں، کتابوں میں محنت ہوتی ہے، ترتیب دینے میں، اکابرین سے جو اس کو سیکھا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم ہمارا یہ ساتھ دینا چاہیے کہ یہ عام فائدے کی چیز ہے، سب پر جانی چاہیے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت سے استفادہ بھی کرتے ہیں، بہت سے اپنے ایریوں میں سکھا بھی رہے ہیں دیکھ کر، لیکن وہ کمنٹ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ان کا کوئی شاگرد اس میں دیکھ نہ لے، کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس سے علم لے رہے ہو، اگر اس کو استاد دل سے مانو گے تو کھلے دل سے جب اس کو استاد تسلیم کرو گے تو انشاءاللہ علم میں چار چاند لگیں گے۔ اور اگر جس سے علم لے رہے ہو اسی کو ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ، تو وہ علم سے محروم رہتے ہیں۔